प्रेम पिता अनुग्रहकारी दयालु धन्यवाद देते प्रभु और एक दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु पूरा दुनिया में प्रभु आपका जन्मदिन को प्रभु याद करने के समय हम भी यहाँ पर प्रभु आपका उपस्थिति में प्रभु जी हेब्रोन प्रार्थना घर में प्रभु हमारे बच्चों के साथ प्रभु आपका जन्मदिन को याद करते हुए आपका सन्मुख आए प्रभु जी आप ही हमें सुधि लीजिए प्रभु आपका और एक बार हम सबको भी इस जगह को श्रेणी को आपको चिड़का लाहों के नीचे लाते आप कलाहों के नीचे रख के प्रभु आप ही हमसे प्रभु जो कुछ आप हमारे लिए तैयार करके रखा है वो भाग हम पाने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी और एक बार शैतान का देखी अनदेखी सारी युक्तियों को आपका नाम से बांधते डांटते आपका नाम की महिमा मिले प्रभु जो भी हम यहाँ पर करेंगे प्रभु हमारे नहीं आपके नाम की महिमा मिले जो भी इस वचन सुने प्रभु सब लोग प्रभु जी जो लोग उद्धार नहीं पाया उद्धार पाए जो उद्धार पाए हमारे बच्चे प्रभु वो लोग भी हैं और आपका नज़दीक में आने के लिए क्रिसमस का समय बहुत आयत का आशीष का कारण बनाइए जो भी समय हम बिताएंगे हम हमारा समय हमको जगह को सबको आपका चिड़कालाओं के नीचे लाते हुए आपका हाथ में सौंपते हुए छोटी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन। अभी हम लोग गाना सुनेंगे। Mary, did you know? One, two, three, start. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy is walked where angels trod? Mary, did you know that your baby boy is walked where angels trod? Did you know that your baby boy is walked where angels trod? That child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy is when they walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy is an angel's trod? That child that you delivered will soon deliver you. Oh, Mary, did you know? Next we'll sing We Three Kings. अभी हम लोग We Three Kings गाना सुनेंगे। 1, 2, 3, start. We three kings of Orient are, bearing gifts we travels afar. Fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Stars of wonder, stars of night, stars with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, following yonder star. Oh, born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never over us all to reign. Oh,
time. Stars of wonder, stars of light, stars with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, following yonder star. हम अभी तीसरा गाना लिटिल ड्रमर बॉय वो गाना सुनेंगे. 1, 2, 3. Come, they told me, pa-ra-pa-pam-pam, a newborn king to see, pa-ra-pa-pam-pam. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pam-pam, to lay before the king, pa-ra-pa-pam-pam, ram-pam-pam, ram-pam-pam. So to honor him, pa-ram-pam-pam, when we come, little baby, pa-ram-pam-pam, I am a poor boy to pa-ram-pam-pam. I have no gifts to bring, pa-ram-pam-pam, that's fit to give our king, pa-ram-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Shall I play for you, pa-ram-pam-pam? Mary nodded, pa-ram-pam-pam. The ox and lamb kept time, pa-ram-pam-pam. It made my best for him, pa-ram-pam-pam. I played my best for him, pa-ram-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Then he smiled at me, pa-ram-pam-pam. Me and my drum, me and my drum, me and my drum, me and my drum. अभी बबीता क्रिसमस के बारे में थोड़ी बातें इंग्लिश में हमको सुनाए. 2000 years ago, there lived a carpenter named Joseph. He was engaged to a woman named Mary. Mary, a few days ago, was visited by an angel who told him that a divine child will be born to you. He will be a great man and will change the whole world. After a few days, Mary got pregnant, and there was a census in the city of Bethlehem, so everyone in the country had to attend the census and record their names. So Mary and Joseph, they both started their journey towards the Bethlehem. Bethlehem was so crowded that they couldn't find a place for them to stay at night. So they found a stable in which they spent their night, and that night was when the Jesus Christ was born. There was no bed for him except the hay. There were no visitors except the shepherds. There was no visitors except the shepherd. But the birth of Jesus Christ was soon announced throughout the world, and everyone was happy for him. Everyone got to know that a special child was born at the Bethlehem's plain, and far away from Bethlehem, 3 wise men came to visit Jesus Christ with loving gifts, gold, myrrh, and frankincense. Everyone was so happy for him, and they praised him for being the king of the Jewish community, except some people and the King Herod. King Herod thought the child to be his competitor and ordered every child under the age of 2 years to be killed. So
So Mary and Joseph had escaped the city of Bethlehem and went to the city of Egypt. After the death of Herod, they came back to their hometown and lived there. When Jesus was a different child from every children. He can read, explain, and debate about the scriptures. He when got baptized and fasted in the Judean desert, he started preaching his thoughts. He started preaching his thought. Everyone loved his teaching. His teachings was clear and nice. Everyone thought that he is a very nice preacher. He told people to love their neighbors as they love themselves. He accepted his 12 apostles. He gathered hundreds of people and preached his thoughts about the heaven and the God and he had to argue with the elderly people of the community, and sometimes he had to fight with the rich traders who tortured the poor people. He knew at the age of 33, he knew that he was going to be killed by the elders of the community while he was going on the way to Jerusalem with his 12 apostles. But still he didn't take his step back and went on to Jerusalem. At his last supper, he predicted that he is going to be arrested and killed soon. And after within few hours, the words of Jesus Christ came true. The elderly peoples of the community had planned against him to crucify him. Even the governor was against him for the death trial, but still they argued for the crucifixion orders. Apostle of his own had betrayed him, named Judas Iscariot, and he was crucified, and he was asked to take his own cross throughout the way, and was whipped on the streets of the Jerusalem and was crucified at the outskirts of the city. But even though the death of Jesus Christ didn't stop him, and still his teachings are now turned into a new religion called Christianity, in which the people loved his way of purity, love, and grace. So everyone now has make him immortal in their hearts as the name of Jesus Christ. Thank you. नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ हो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ हो यीशु नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे जर्नी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे यीशु सबका आया हो यीशु सबका आया हो यीशु सबका आया झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ हो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ राजा सब घबराती गए
यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, आया पता ना रे। राजा सब घबराती गई यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, आया पता ना रे। यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ। झूम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है भाइयों। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है बहनों। यीशु के पंखों तले आश्रय तुझे मिलेगा। बीमारी हो या कोई भी हो, तेरे निकट आना पाएगा। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है भाइयों। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है बहनों। मायू बलूत आई थी, प्रभु से प्रतिफल पाई। मायू बलूत आई थी, प्रभु से प्रतिफल पाई। खुद उन्नति और वसूल प्रभु से पाई। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है भाइयों। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है बहनों। यीशु मसीह को ग्रहण कर, लहू से तुझे धोएगा। यीशु मसीह को ग्रहण कर, लहू से तुझे धोएगा। पवित्र हृदय मिलेगा, स्वर्ग तुझे ले जाएगा। पवित्र हृदय मिलेगा, स्वर्ग तुझे ले जाएगा। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है भाइयों। ना कोरोना आएगा ना कुछ भी आएगा, यीशु तेरे साथ है बहनों। Hello, everybody. My name is Melanie, and I have an important message for you today. During this time of pandemic, many are suffering. Some have lost jobs, others are going hungry. Many people are stressed. Many are wondering what is going to happen next. I want to tell you that you don't need to be stressed, because the Bible tells us that God can give us perfect peace if we keep our mind on Him. Isaiah verse 3, chapter 26. We don't need to be stressed out, because this just tells us that Jesus is coming very soon and He is going to take us home in heaven, where there will be no more pain, no more hunger, no more tears, and no more pandemic. We all will be happy and healthy there, and God will change us and create a new world. Do you believe it? You have to have faith to see it. Faith in God's Bible. That's where it tells us all this good news. So don't let this pandemic make you lose sign of Him. Instead, let it bring closer to Him. Read your Bible every day and have confidence in the Bible. Cling to God's promises. The Bible says in Psalm chapter 91, verse 6 and 7, that when the pestilence come,
1,000 shall fall at thy side, and 10,000 shall fall at thy right hand, but it won't come near you. It isn't God's promises sweet? That's a promise for our time. And if we have faith in it, God promises that He will do it. He never breaks His promises because He is God. And God never lets us down. So today, I want to remind you that Jesus is coming very soon. We must be ready to meet Him as His second coming, ready today. But how? The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, therefore keep watch because we don't know what day your Lord will come. We must watch. Watch for signs like this pestilence. Yes, this pandemic is a sign to get ready. So if you have been watching, then you realize that Jesus is telling us to get ready because He is coming soon. And we must build our faith because the Bible says faith is victory. 1 John chapter 5 verse 4. And we are saved by grace. True faith, a vision to it. How must we build our faith? We must spend time in the Bible. Romans 10:17. And since we have been locked down, we have been staying home a lot. But because that I read my Bible more, one chapter a day keeps the devil away. Why don't you read with me today? Let's build our faith. Faith comes by hearing and hearing word of God. And let's read every day so that we can be ready for Jesus today. And we don't need to be afraid. This is the peace that we can have rising above the storm. God bless you. Thank you. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the sky. Read and jolly hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the King. Christ by highest heaven, Lord, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Will in flesh the Godhead sing, will the incarnate flee. Taste His blood with blood to draw, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Heaven, mountains of trees, hail the Son of righteousness, light of healing, all ye praise, rising there to Him give praise. Remedial is His glory by, born that man be not to die, born to man the second birth, Merry Christmas. आइए अभी हम लोग क्रिसमस की छोटी सी कहानी हम सुनेंगे। वो भी क्रिसमस के बारे में है। मतलब
एक लड़का है, उसका नाम डैनियल है। वो डैनियल बहुत ही मतलब उस दिन बहुत थका हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी ने उसको एक काम दिया। क्या काम दिया उसको? मतलब उसकी मम्मी ने उसको काम दिया। उन्होंने एक काम कर रहा था, वो काम करके करके वो थक गया। कैसा थक गया था वो? एकदम उसको मतलब कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो वो जाकर अपना घर में वो स्टेप्स पर बैठ गया। जब वो बैठ गया तो उसकी मतलब उसका ये सोचने लगा, ये तो जीसस का बर्थडे है, तो जीसस का बर्थडे ख़त्म होने के बाद थोड़े दिन के बाद मेरा भी बर्थडे आएगा। ये दो दिन डैनियल को बहुत ही पसंद आए। वो 2 दिन बहुत डैनियल को पसंद है। तो डैनियल भी, क्योंकि वो 2 दिनों में क्या होता है, क्रिसमस का दिन और क्रिसमस के दिन के बाद क्या होता है, वो 2 दिनों में हम लोग को एकदम गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। वो गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो गिफ्ट्स को हम लोग एंजॉय करते थे एकदम। इसलिए डैनियल को 2 दिन बहुत पसंद है। उसके बाद डैनियल ने उन्होंने एकदम सोचते सोचते वहाँ बैठे बैठे सो गया। सोने के बाद वो सो जाते तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग भी सोते हुए स्वप्न देखते हैं। डैनियल भी अपना स्वप्न देखने लगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोचने लगा अरे क्रिसमस में मुझे गिफ्ट मिलेगा और मेरे बर्थडे में भी गिफ्ट्स मिलेंगे, कैसे कैसे गिफ्ट मिलेगा करके सोचते सोचते वो सो गया। जब वो सो गया तो उसको एकदम स्वप्न आया। वो स्वप्न में क्या हुआ देखिए, वो उनके सारे दोस्त लोग आए थे। वो देख रहा था वो सारे दोस्त लोग कैसे आए थे, गिफ्ट्स लेके आए। वो गिफ्ट्स लेके आया, उन्होंने देखा अरे हमारे सारे दोस्त लोग आया, मेरे लिए बहुत सा गिफ्ट लेकर आया। ऐसा करके वो देख रहा था। देखते देखते उसके स्वप्न में क्या हो गया, दूसरा वो लोग बात कर रहे थे, अरे वो गिफ्ट्स एक दूसरे को दे रहे थे। जो डैनियल सोच रहा वो गिफ्ट्स हमको दे देंगे, फिर भी वो लोग क्या कर रहे, दूसरों को बांट रहे। वो उन बच्चों में एक बच्चा टेड करके उन्होंने बोला एक लड़की को, अरे आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, ये तो मेरे पसंद का ही था। फिर एक और ने बोला है गए ये बच्चों हमको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, ऐसे करके उन्होंने भी बोला। डैनियल सुन रहा था स्वप्न में, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे गिफ्ट देना है। वो लोग आपस में गिफ्ट बांट रहे, अपने अपना गिफ्ट खोल के एकदम देख रहे थे, खुश हो रहे हैं एकदम। उसको स्वप्न में ही उसको अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो लोग डैनियल को देने के बदले में अपने आपस में बांट रहे थे। वो लोग बांटने के बाद सब अपने अपना घर चले गए थे। एकदम डैनियल अकेले रह गया। वो अकेले क्या किया, अपने घर में एक क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस का ट्री के सामने वो बैठ गया। बैठ कर वो सारे वो लोग क्या किए थे, अपना अपना गिफ्ट खोल के अपना सारा रेपर वहीं पर वो जो गिफ्ट पैक करते हैं ना, वो कागज़ वहीं फेंक के चले गए थे। वो बैठ के वो कागज़ देख रहा था स्वप्न में। वो देखते देखते वो स्वप्न में ही बोलने लगा, ये तो बहुत अच्छा नहीं है, मेरे बर्थडे है, मुझे गिफ्ट मिलना है, ये लोग ने क्या किया, ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे करके वो चिल्लाने लगा। तब वो ना उनकी मम्मी आई, उनकी मम्मी ने आके, ए डैनी उठो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी बैठे बैठे सो गया था, सोते सोते आपने स्वप्न देखा होगा, इसलिए तुमने चिल्ला रहा होगा। उन्होंने बोला हाँ मम्मी मैंने स्वप्न देखा है, ये तो अच्छे स्वप्न नहीं है, बहुत बुरा स्वप्न है। उसमें क्या हुआ वो सब डैनियल ने अपनी मम्मी को बताया। देखो स्वप्न में मेरा बर्थडे था, सब लोग आए, गिफ्ट्स लेकर आया है, फिर कोई भी मुझे गिफ्ट नहीं दिया। वो आपस में बांट के फिर वो लोग अपना खोल के रैपर यहाँ फेंक के चले गए थे। फिर उनकी मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, ये तो बुरा स्वप्न है, ये तो अच्छा हो गया। इस स्वप्न के द्वारा हम एक पाठ सीख सकते हैं, एक लेसन हम लोग सीख सकते करके उनकी मम्मी ने
बोला। फिर उन्होंने उनकी मम्मी ने पूछा, देखो डैनियल क्रिसमस मतलब किसका बर्थडे है? डैनियल ने बोला, हाँ हमको पता है क्रिसमस तो यीशु का बर्थडे है, क्योंकि डैनियल संडे स्कूल जाता था। फिर इसलिए डैनियल ने बोला, यस क्रिसमस का मतलब यीशु का बर्थडे है। फिर उनकी मम्मी ने बोला, और क्या है? फिर डैनियल ने बोला, क्रिसमस जीसस का बर्थडे, जीसस का बर्थडे में गडरिये आए थे, जीसस के बर्थडे में शुद्ध वक्ता वो ज्योतिषी भी आए थे। ऐसे करके वो ज्योतिषी उनको जीसस को गिफ्ट्स लेकर आए थे, ऐसे करके जो डैनियल बता रहे थे। फिर उनकी मम्मी ने बोला, अरे डैनी आपको तो बहुत कुछ पता है। ऐसा करके फिर उनकी मम्मी ने क्या किया, अपना बाइबल लेके आई, ऐसे बाइबल। फिर उन्होंने अपना बाइबल खोल के उनको लूका सुसमाचार में 2 अध्याय में जो कहानी लिखा वो कहानी उनको बताने लगा। उनकी मम्मी ने बोली, देखो डैनियल, क्रिसमस के दिन में गलील में नाजरत नामक एक नगर था। वो नगर में एक कन्या है, वो मतलब कुमारी है, उसके पास स्वर्गदूत आया। वो स्वर्गदूत ने उनको मरियम, वो कुमारी का नाम मरियम, वो मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, देख मरियम, ये देखो स्वर्गदूत मरियम के पास आई। मरियम के पास आने के बाद स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, तू गर्भवती होगी, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो स्वर्गदूत ने उनको बताया, अरे यहाँ पर लिखा है, मैंने आपके लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आया, तुम गर्भवती होगी, तुम्हारे लिए एक पुत्र जनेगा, वो महान होगा, वो पुत्र बहुत मतलब वो परमेश्वर का पुत्र है, उसका राज युगान युग का है करके उन्होंने बताया। फिर उसके बाद स्वर्गदूत वहाँ से फिर मरियम ने कुछ दिन पहले ही एक यूसुफ नामक एक आदमी से उनका मगनी हुई। स्वर्गदूत मरियम को बताया तो फिर यूसुफ के भी बताना पड़ेगा। फिर स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को भी बताया, क्योंकि तो देखो तेरे पत्नी मरियम की जो गर्भ में है वो हम मेरी ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है, वो एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु मतलब अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा करके यूसुफ को भी स्वर्गदूत ने स्वप्न में बताया। फिर वो बताया वो अपने लोगों उनके पापों से शुद्ध करेगा। देखिए यीशु मसीह हमारे पापों से शुद्ध करता है। फिर मेरे डैनियल को उनकी मम्मी ने पूछा, डैनियल पाप का मतलब क्या होता है बताओ? फिर मैं डैनियल ने बोला, हाँ पाप का मतलब होता है हत्या करना, चोरी करना, फिर झूठ बोलना, और बात नहीं मानना, और मतलब स्वार्थी होना, और क्या है, दूसरों को कोई चीज़ बांटना नहीं है, अपने लिए रखना, ये सब पाप है। तो इसलिए उनकी मम्मी ने, अच्छा हाँ ये तो आपको पता है। फिर जब बोलते बोलते डैनियल को भी एकदम वो बातें छुप गई, क्योंकि डैनियल भी कभी कभी मम्मी का बात नहीं मानता है। इसलिए वो मम्मी ने डैनियल को बोला, देखो डैनियल तो आपको क्या लगता है? डैनियल सोचने लगा। फिर मैंने बोला, मम्मी मैंने भी पाप किया हूँ, मैंने भी कभी कभी आपका बात नहीं माना है। तो फिर मम्मी और भी बोलने लगी, देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए देखिए हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया। और बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि देखिए पढ़ेंगे, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इसलिए उन्होंने बोला, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा ताकि कोई भी नाश न हो, सब लोग अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पहले ही था परमेश्वर के पास, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में एक छोटा सा बालक रूप में इस दुनिया में पैदा हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया? हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया। वो क्रूस पर मर गया, फिर मर जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठने के बाद वो स्वर्ग में गया, वो आने वाला है। इसलिए डैनियल भी सोचने लगा, अरे मैंने भी पाप किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए भी मर गया करके। फिर मर के मम्मी ने एक वचन उनको पढ़कर सुनाया। वो वचन है 1 कोरिन्थियंस, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें भी यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा करके वो बताई। फिर उसने बताया देखो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जी उठने के बाद एक और वचन उन्होंने पढ़ा, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद, उसमें क्या लिखा है, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते। फिर उनकी मम्मी ने डैनियल से पूछा, क्या डैनियल, देखो जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनको परमेश्वर ने उनका संतान होने का अधिकार दिया, क्या तो आप विश्वास करते हो? ऐसे करके उनकी मम्मी ने उनसे पूछा। फिर उन्होंने डैनियल ने बोला, हाँ मम्मी मैं विश्वास करता हूँ। उसके बाद डैनियल ने अपने सारे पापों को प्रभु के सामने मान लिया। मानने के बाद फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा करो, मैंने आपको जो इच्छा नहीं वो किया है, वो भी पाप है, जो प्रभु का पसंद नहीं है वो करते वो भी पाप है, मैंने सब कुछ आपको जो पसंद है वो नहीं किया, मैंने पाप किया, मेरे पाप क्षमा करो। ऐसा करके उन्होंने माफ़ी मांगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार कर लिया। फिर बाद में डैनियल को बहुत अच्छा लगा उस दिन क्रिसमस का। बस उन्होंने मम्मी से मतलब मम्मी ने बोला, देखो डैनियल, परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा गिफ्ट भेजा। देखो आपको गिफ्ट्स बहुत पसंद है ना, वो गिफ्ट एकदम अनोखा गिफ्ट है। ये क्या है पता है? 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 15 पद। 2 कोरिन्थी 9 अध्याय, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर में प्रभु ने दिया, दान के तौर पर, वो हमारे लिए क्या अनोखा है, मतलब वर्णन से बाहर है। इतना मतलब वो गिफ्ट कोई भी हमको नहीं दे सकता, वो उतना गिफ्ट परमेश्वर ने हमको दिया है। पर डैनियल ने उस दिन डैनियल को वो गिफ्ट मिल गया, वो बहुत खुश था। फिर उन्होंने डैनियल ने सोचा, देखो मम्मी, परमेश्वर ने मेरे लिए तो गिफ्ट दिया, मैं किसको गिफ्ट दूँ, मैं किसको परमेश्वर के लिए क्या गिफ्ट दूँ? परमेश्वर ने मेरे लिए तो गिफ्ट दिया अपने आप को, मैं परमेश्वर को क्या गिफ्ट दूँ करके उन्होंने अपने मम्मी से पूछा। फिर बाद में कुछ दिन, तो संडे का दिन वो लोग चर्च गए थे। जब वो लोग चर्च गए तो चर्च में वो लोग ने एक ट्री अच्छा से उसको सजाया। वो ट्री में ये बैलून, नहीं तो घंटी, नहीं तो गिफ्ट वो नहीं टांगे थे। वो ट्री में सिर्फ वाइट सफ़ेद दूत जैसा, स्वर्गदूत जैसा सफ़ेद सफ़ेद सा कागज़ चिपका हुआ था। फिर डैनियल ने देखा ये क्या सा ट्री है, ऐसा करके वो सोचने लगा। फिर वो संडे स्कूल में जाने के बाद वो संडे स्कूल आंटी ने डैनियल को समझाया, देखो बाहर एक ट्री है, वो ट्री में छोटे छोटे स्ट्रिप्स लिखे हैं, उसमें बच्चे का नाम भी है और बच्चे का पता भी है, वो बच्चे कौन है, जो जिनकी माँ बाप जेल में है वो बच्चे हैं करके। फिर उन्होंने डैनियल ने सोचा, फिर वो मैं भी परमेश्वर के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ ना, इसलिए वो जाके वो आराम से वो वहाँ से वाइट सफ़ेद ट्री से एक छोटा सा एंजल को उन्होंने भी लिया। उसमें जो नाम लिखा, वो बच्चा का नाम और उसका एज, उसका पता सब देखा। वो भी डैनियल जैसा 9 इयर्स ओल्ड का लड़का था। फिर उन्होंने डैनियल को एकदम से अच्छा लगा। फिर डैनियल के मम्मी ने वो बच्चे के लिए एक दिन डैनियल और उनकी मम्मी दोनों मिलके शॉपिंग गए थे। जब वो लोग शॉपिंग करने गए थे तो डैनियल के मम्मी ने उस बच्चे के लिए अच्छे से कपड़ा खरीद लिया। फिर डैनियल ने भी अपना पॉकेट मनी मतलब हमारा देश में ऐसा नहीं करते हैं, फॉरेन में मतलब दूसरे देश में बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, वो लोग अपने लिए खर्च नहीं करते, दूसरे का खर्च करने के लिए वो लोग छिपा के मतलब वो लोग इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। यहाँ पर डैनियल ने भी अपना पॉकेट मनी रखा है अपने पास। वो पॉकेट मनी से उस बच्चे के लिए उन्होंने गिफ्ट खरीद लिया। जो 2 गिफ्ट खरीदा, एक तो उन्होंने टॉर्च खरीद लिया अच्छा सा लाइट, और दूसरा उन्होंने उसके लिए एक गेम खरीद लिया खेलने के लिए। जब उनका डैनियल और उनकी मम्मी दोनों वो बच्चे का एड्रेस लिखा है ना, वो एड्रेस पकड़ के वहाँ पर गए थे, और जाने के बाद वो लोग वो बच्चे को देखा, उसको वो कपड़ा दिए थे और उस डैनियल ने अपने पास से वो गिफ्ट और टॉर्च दिया। वो बच्चा बहुत खुश था, बोला अरे मेरे को यही चाहिए था, मुझे मिल गया, ऐसा करके वो बहुत खुश था।
इसलिए हम लोग भी अपनी खुशी को दूसरों को बांटना है। इसलिए बाइबल में एक वचन है, लेने से देना धन्य है। देखिए, लेने से देना धन्य है। हमारे बर्थडे में क्या करते हैं, हम हमेशा हम लेते रहते हैं, देते नहीं है। आजकल कभी कोई रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे हैं, इतना बड़ा गिफ्ट देते नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, देना सीखना है। देखिए, डैनियल इतना छोटा है, 9 इयर्स का है, फिर भी उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से वो लड़के के लिए एक छोटा सा टार्च भी खरीदा, एक छोटा सा गेम भी खरीद के दिया। बच्चा कितना खुश था, उसको कोई भी नहीं थे, फिर भी प्रभु ने देखो डैनियल को, जो परमेश्वर ने डैनियल के लिए क्या गिफ्ट दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट, वर्णन से बाहर, वो प्रभु यीशु मसीह। डैनियल ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने पास से, प्रभु की तरफ से एक अनाथ बच्चे को, जो बच्चे को उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया। हम लोग भी आपने मतलब इस क्रिसमस में हम क्या प्रभु के लिए देना चाहते हैं, आप भी पहले अपना आप सोच लीजिए, मैं प्रभु को क्या गिफ्ट दूँ। पहले अपना हृदय प्रभु को देना है, प्रभु यीशु मसीह को वर्णन से बाहर वो गिफ्ट को स्वीकार करना। उसके बाद प्रभु के लिए आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं दूसरों को, जिसके पास नहीं है। हमेशा हम लोग खरीद करके अपने ही मतलब नया कपड़ा पहन के मतलब खुश होना और नया चीज़ें खरीद के हम आनंद करना, ये सब कुछ नहीं है। प्रभु के लिए हम क्या करना है, प्रभु से पूछने से प्रभु हमको बताता है। सच में यहाँ पर अभी भी हम लोग देख रहे थे, बहुत से बच्चों के पास बहुत कुछ नहीं है जो हमारे पास है। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रभु जो जिकाते हैं वो करना है, प्रभु के लिए करना है। प्रभु ने हमारे लिए किया, हम लोग को भी करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो मेरी बात से ये जो प्रभु यीशु मसीह हमारे वर्णन से बाहर वो गिफ्ट है, वो 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 15 पद। इसलिए ये वचन को याद करिएगा। प्रभु के लिए जो प्रभु दिखाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं इस क्रिसमस के लिए मैं आपके लिए क्या गिफ्ट दूँ। ऐसे प्रभु आपको दिखाएगा, आप प्रभु के लिए वो देना, वो काम करना है। प्रभु आपको मदद करे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बड़े लोग से भी पूछ करके आप दे सकते हो। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रभु इस क्रिसमस अलग से, जैसा हमेशा बनाते आया वैसा नहीं है, ऐसे अलग से। इसलिए इस कहानी का नाम भी वही है, हुज क्रिसमस इज इट। देखिए, डैनियल ने स्वप्न में देखा, और क्रिसमस में आप वो बर्थडे में अपने दोस्त लोग आए थे, आपस में गिफ्ट बांट रहे थे। हम भी क्रिसमस में वही करते हैं, आपस में गिफ्ट बांटते हैं, प्रभु के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए प्रभु के लिए क्या करना, प्रभु आपको समझाए। प्रभु से प्रार्थना करें, पहले प्रभु जो गिफ्ट है वर्णन से बाहर, वो गिफ्ट को स्वीकार करना। उसके बाद प्रभु के लिए भी कुछ करना। प्रभु के लिए सुसमाचार भी सुना सकते हैं, चाहे तो बाइबल भी गिफ्ट दे सकते हो, चाहे तो जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़े दे सकते हो, जिनके पास खाना नहीं है तो उनके लिए तुम्हारे खाने का प्रबंध कर सकते हो, आपके घर में भी बुला सकते हो, ऐसे आप कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेम पिता अनुग्रहकारी दयालु धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी बच्चों को कहानी रूप में बताया गया वचन को प्रभु आप आशीष दीजिए। सच में आपके बर्थडे में हम आपस में गिफ्ट बांटते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते, हम बात सोचते हैं हम अच्छा क्रिसमस मनाया, वो अच्छा क्रिसमस कैसा होता है प्रभु। इसलिए आज इस कहानी के द्वारा हम हमारे बच्चे हमारे क्रिसमस अच्छे से मनाने के लिए, तो जो वर्णन से बाहर है वो गिफ्ट को पहले स्वीकार करने के लिए हमारे बच्चों को भी आपकी मदद करें। जो लोग अभी तक ग्रहण किया उनके लिए धन्यवाद देते, जो ग्रहण नहीं किया आज ही ग्रहण करने के लिए प्रभु आप ही मदद करिए। और जो लोग प्रभु जी आपको ग्रहण किया, प्रभु आपके लिए जो करना आप चाहते हो बच्चे हमारे बच्चों के द्वारा हमारे द्वारा आप ही करा लीजिए। हम सबको भी आपका हाथ में सौंप देते प्रभु, फिर हम मिलने के तक आप हमको पंखों के नीचे रख के संभाले रक्षा करें। छोटी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन।